ಐಟಂ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಮುಂದುವರಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ದೀಪ ಬೆಳಗೋ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BSY ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೆಂದಾವರೆ ಕಮಲ ಅರಳಿದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸುದೀರ್ಘ ಶಾಸಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸದನ ಶಿಕಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಗುಡುಗಿನ ನುಡಿಗಳು ಎಂಬ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Well, ladies and gentlemen, these 2 books are very important, which gives us an insight into Shri B.S. Yediyurappa. The ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದತ್ತ ನಾವು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ CT ರವಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Time has now come to felicitate Honorable BS Yediyurappa ji by the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. As the felicitation goes on, I would request Shri CT Ravi to present the citation. ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ भारत माता की, भारत माता की, हरा 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 हरा, जय श्री राम, जय श्री राम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರೈತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ರೈತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೋರಾಟವೇ ಬದುಕು, ಜನಸೇವೆಯವೇ ಧರ್ಮ. ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ 50 ವರ್ಷ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ತಾವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂಕನಕೆರೆಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಮುಂದೆ 4 ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಈ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಜನಪರ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹವೇ ಧರ್ಮಗಳ ಅಮರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸತತ ಹೋರಾಟ, ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲ,
ಹೋರಾಟವೇ ಬದುಕು ಆಗಿರುವ ಯಶೋಗಾಥೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಸೇವೆ, ಸಮರ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ, ಜನಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ 1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿ ತಾವು ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ನಡೆದಿರಿ. ಬಿದ್ದರೂ ಭಾಗದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಯಿತು. ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಗುಡುಗಿದ್ದು, ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಬಡ ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಿನ ಧ್ವನಿಯಾದಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶೋಷಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಮನೆ ನೀಡಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ನಿರಂತರವಾದದ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ರಮ ನೋಟಿಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ರೈತರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೋರಾಡಿದಿರಿ. ರೈತರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಡೀಸೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ, ರೈತ ನೇಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಜನಜನಿತ. ನಿಮ್ಮ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ 2008ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಸನ, ಬಡವರಿಗೆ ವಸತಿ, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ರೈತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, it's indeed a matter of great pride and privilege that Shri Amit Shah ji is here. On behalf of all of us, we request Shri Amit Shah ji to kindly accept the felicitation. But ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों स्वागत कीजिए. Let's put your hands together and welcome Shri Amit Shah ji for his inaugural address. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? बंगाल में हमारी विचारधारा का इतना प्रचंड विजय हुआ है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और मेरे साथ मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की. वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम. आज भारत माता की. आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के प्रस्तापित किसान नेता श्रीमान बीएस येदुरप्पा जी का सम्मान करने के लिए यहां आए. मगर आज
एक प्रकार से मणिकंचन योग है। ये जब तिथि तय की गोविंद कारजोल जी ने, तब मालूम नहीं था कि आज ही बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ विधि होगा। और आज एक ही दिन पर येदुरप्पा जी के 50 वर्ष के लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद कर्नाटक, देश भर के किसान और भारतीय जनता पार्टी की 50 साल तक सेवा करने के लिए येदुरप्पा जी के सम्मान का आज ही दिन तय हुआ है। और आज हमारी विचारधारा के अनुयायियों के लिए भारत माता को आराध्य मानकर जीवन जीने वाले सभी देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जिस भूमि पर श्री अरविंद, श्री विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस और हमारी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, वहीं आज भगवा लहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, मैं स्वागत समिति के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स को हृदय पूर्वक एक और बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। कर्नाटक मैं 2014 से आ रहा हूं। कई मंच मैंने पूजनीय संतों के साथ साझा किए हैं। येदुरप्पा जी के व्यक्तित्व के कारण आके आज एक ऐसा मंच हमारे सामने है जहां सभी मत संप्रदाय के स्वामी जी है। और ये बात पूरे कर्नाटक के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश लेकर जाती है कि जो आप इस प्रकार का जीवन जीते हो तो मत, संप्रदाय और किस जाति के आप स्वामी जी हो, इस किस जाति के अनुयायी आपके फॉलोअर है, इसको देखे बगैर सभी लोग आज एक मंच पर एकत्रित आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आज सबके अलग अलग नाम लेने की जगह जिन्होंने कर्नाटक की पवित्र भूमि पर धर्म को पकड़ कर रखा है, धर्म के आधार पर समाज का हमेशा मार्गदर्शन किया है और यहाँ पर अनेक प्रकार की शिक्षा से लेकर, पोषण से लेकर अनेक सामाजिक प्रवृत्तियां भी ये महान स्वामी जियों के मठों से हुई है। वो सभी स्वामी जी को हम सब की ओर से प्रणाम कर कर इनके श्री चरणों में वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये चित्रदुर्ग राजा मदकरी नायक की वीर भूमि। अभी कुछ दिन पहले किस लोगों ने विवाद किया कि मैंने यहां स्मारक बनाने की बात की थी, स्मारक हुआ नहीं। मगर मैंने विधानसभा चुनाव में की थी। सरकार तो कांग्रेस की बनी, मगर चिंता मत करिए, मोदी जी है ना, ये स्मारक हम जरूर बनाएंगे और यही भूमि पर बनाएंगे। इन्होंने, राजा मदकरी नायक जी ने हैदर अली को हराया, भगाया और इस क्षेत्र को स्वतंत्र रखने में बहुत बड़ी भूमिका की। मैं आज
वो महान वीर राजा मतकरी नायक को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में चित्रदुर्ग की एक कहानी सभी बच्चों को अपने पिता और दादा कहते हैं। यहां पर वीर नारी ओबव्वा ने जिस प्रकार से वीरता का प्रदर्शन कर हैदर अली के सैनिकों को भूत चट्टा किया था, वो आज देश भर की बच्चियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्तोत्र है। मैं फिर से एक बार वीर ओबव्वा को बहुत मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हमें अभी येदियुरप्पा जी को सुनना है। येदियुरप्पा जी जीवन भर हमेशा विनम्रता के साथ जिए हैं। उन्होंने भाषण का क्रम उनका भाषण मेरे पहले रखा था। मैंने कहा है आज येदियुरप्पा का दिन है, येदियुरप्पा जी का भाषण मेरे बाद होगा और मैं अंत तक सुनूंगा भी। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसे नेता का सार्वजनिक जीवन के 50 साल का अनुमोदना करने आया हूं, सम्मान करने आया हूं, जिसका पूरा जीवन आम लोगों के साथ। मगर जो राजनीति में युवा आना चाहते हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि येदियुरप्पा के 5 दशक के सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में विशेषकर संघर्ष का जरूर अभ्यास करिए। येदियुरप्पा जितना संघर्षशील नेता शायद पूरे दक्षिण भारत में कोई भी नहीं है, ये सब ने स्वीकारना पड़ेगा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करते करते ही जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये मंत्र को चरितार्थ करा और किसान का कल्याण ही राष्ट्र का कल्याण है, इस सूत्र को भी चरितार्थ करने का काम श्री येदियुरप्पा जी ने किया है। एक चावल मिल के अंदर क्लर्क की नौकरी करने वाले व्यक्ति ने अपने यशस्वी जीवन में 4 बार कर्नाटक जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल किया है। राजनीति में 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होता है जो रास्ता बना है वो रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पूरी करे, और जो दूसरा नेता होता है जो कुछ कर जाते हैं वो होते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाकर दूसरों के लिए रास्ता बनाने का काम करे। श्री येदियुरप्पा का जीवन इसी प्रकार का जीवन। एक साधारण युवक के रूप में शिकारीपुरा से जब उन्होंने यात्रा शुरू की, उनके पास कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। एक साधारण व्यक्ति नैतिकता के सहारे आइडियोलॉजी को आगे कर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, उसका उदाहरण श्रीमान येदियुरप्पा है। उनकी इच्छा शक्ति, संघ के संस्कार और राष्ट्र ही सर्वोपरि है, ये उनका विचार पूरा जीवन का ध्रुव वाक्य रहा। 83 में वो पहली बार शिकारीपुरा से विधायक बने और उनका जीवन बंद एसी कमरों में बैठकर फाइलें क्लियर करने में नहीं गया। गांव-गांव
स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, कुछ न मिला तो साइकिल पर भी येदियुरप्पा ने पूरे कर्नाटक का दौरा कर कर यहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। बगैर हुक्म का आंदोलन जब उन्होंने चालू किया, भूमिहीन किसानों को जमीन का हक दिलाने के लिए, तब काफी लोगों को लगता था कि ऐसे आंदोलनों से कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी का क्या हुआ। मगर उन्होंने हजारों किलोमीटर पद यात्राएं कर कर किसानों के मन में अपने अधिकार को प्राप्त करने की एक अहलेक जगाई और वहीं से येदियुरप्पा जी किसान नेता के रूप में जाने गए। 75 में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में भी मुखर कर हिस्सा लिया, शिवमोगा और बेल्लारी की जेल में रहे और लोकतंत्र की ये लड़ाई में येदियुरप्पा जी ने युवा अवस्था में ही बहुत बड़ा योगदान दिया। मित्रों, येदियुरप्पा जी के साथ मैंने 3 चुनाव में प्रचार किया है। मैं आज के युवा कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, इनके पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रहती है। कोई भी मिलने आता है तो समस्या और उसका नाम वो डायरी में कन्नड़ भाषा में खुद ही लिखते हैं और ये संपर्क सूत्र मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी सीखने का काम कर रहा है। हम सब के लिए छोटी सी छोटी समस्या के लिए किस प्रकार से जवाबदेही के साथ एक जन नेता काम करता है, ये येदियुरप्पा जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया। जब भी भारत का राजनीतिक दलों का इतिहास कोई लिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखेगा, तो दक्षिण भारत में भाजपा को आगे बढ़ाने वाले नेता में येदियुरप्पा जी का नाम निश्चित रूप से सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भाइयों बहनों, जब जनसंघ बना, भाजपा बना, तब एक विचार प्रचारित किया गया कि दक्षिण में कभी भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती और येदियुरप्पा जी ने दक्षिण में भी पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनकर दक्षिण के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलने का काम श्रीमान येदियुरप्पा ने किया। 85 में जब हमारी 2 सीटें हो गई, तब येदियुरप्पा जी लगन के साथ भाजपा के विकास के लिए लगे रहे हैं और 2008 में भाजपा की दक्षिण की पहली सरकार बनाने का काम येदियुरप्पा जी ने किया। मित्रों, मैंने विधानसभा चुनाव में कर्नाटक का बहुत डिटेल दौरा किया है। कई गौरवशाली मठ, कई शिक्षा संस्थान, कई बड़े बड़े धार्मिक नेताओं की समाधियां, कई स्वतंत्र सेनानियों की समाधि पर मैं गया हूं। हर जगह पे येदियुरप्पा जी ने अपने मुख्यमंत्री के काल में शासन के माध्यम से व्यवस्था करने का काम येदियुरप्पा जी ने किया। मैं आज जरूर बताना चाहूंगा कि जब संगोली रायन्ना को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां उनको फांसी दी गई, वहां पर मैं गया था। दूर से देखकर लगता था कि इस स्थान की किसी ने चिंता नहीं की। इतने महान देशभक्त, इसके शहीदी के स्थान की चिंता नहीं हुई। मगर मैं अंदर गया, छोटा सा बागीचा, शुद्ध पीने का पानी, बैठने के लिए कुछ बेंचेस लगे हुए थे और उनका संगोली रायन्ना का पूरा इतिहास वहां पर लिखा हुआ था। मैंने वहां पूछा
कि भाई ये किस सज्जन ने किया था। येदुरप्पा जी मेरे साथ में थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा आपके साथ खड़े हैं वो येदुरप्पा जी ने करा। मित्रों, ये जो भाव समाज जीवन के प्रेरणा स्थानों को शासन आगे बढ़ाए, वो भाव उसी में हो सकता है जो समाज को प्यार करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। देश भर में किसान बजट रखने की शुरुआत भी श्री येदुरप्पा ने की। जब हरी शॉल ओढ़कर वो विधानसभा में किसान बजट पढ़ते थे, न केवल कर्नाटक, देश भर के किसानों को लगता था हमारी चिंता करने वाला एक राजनेता आज कर्नाटक का मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ी परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई। अन्नदाता के नेता उन्होंने बने और किसानों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। बेंगलुरु को दुनिया के नक्शे पर ग्लोबल टेक हब के रूप में रखने के लिए भी येदुरप्पा जी को वर्षों तक याद किया जाएगा। और येदुरप्पा जी ने अलग अलग समुदायों को, चाहे लिंगायत हो, ओबीसी हो, दलित हो, गौड़ा हो, सबको बीच में सद्भाव बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। और मैं एक बात फिर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं, जिसका मैं साक्षी हूं। 2014 में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मंत्रिमंडल बन रहा था, मैं भाजपा का महासचिव था। अचानक गुजरात भवन पर सुबह एक कागज आया, वो कागज येदुरप्पा जी का था कि मेरी प्रायोरिटी कर्नाटक है, कर्नाटक में फिर से भाजपा सरकार बनानी है, मुझे मंत्रिमंडल में मत रखिएगा।